Good morning, everyone. Welcome back to the class. Today we will be discussing the topic conjunctions. So today we will be talking about conjunctions. In yesterday's class, I hope you guys have read that class again. So let's start today. Let's start our today's topic, and that is conjunctions. So what are conjunctions? So conjunctions are the words that join words, phrases or clause. वो words हैं जो words को या फिर दो different phrases को या फिर clause को join करते हैं. For example, अगर ये दो statements हैं, तो अगर यहाँ पे बीच में हम full stop लगाएंगे, this is statement A and this is statement B. So they act as this bridging gap. ठीक है, अगर यहाँ पे full stop रहेगा ना, so what they will do, they will just make these two statements, they will convert these two statements into one single statement. I hope that's clear. What are conjunctions? Words that join words. They can also join words, they can join phrases, or they can join clauses. So next is, as always, types of conjunctions, kinds of conjunctions. We are going to read about 4 kinds of conjunctions. They all have multiple subforms, but we will be reading them only in the basic form. So as per the basics, there are 4 kinds of conjunctions. The one is coordinating conjunction, other is correlative, then subordinating, and last is conjunctive adverbs. Okay. So we have 4. Now we will see what these 4 means. As I've told you earlier, jahan pe bhi you don't get what that particular word mean is, break down that word into parts and you'll get to know. Let's start with the very first part, that is coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, we also call them as coordinators. What are coordinators? They are used to join the grammatical units. किसी भी statement की जो grammatical units होती हैं, जो कि same class, same rank या same pattern की है, उनको join करने के लिए हम क्या use करते हैं? Coordinating conjunctions. Coordinator की तरह वो act करते हैं किसी भी statement में, उस statement को coordinate करने के लिए they act. So that's why their name is coordinating conjunctions. Now coordinators में क्या आता है? It is and, but, or, neither, nor, for, yet, still. So all these are what? They all are coordinators. किसी भी statement में हम इनको use करेंगे. For example, this. The statement says that Riya and Sapna are coming to visit us. Who are visiting? Riya and Sapna. They are of same rank, that is, they are of same class. Both are girls, both are she. And we have connected them by and. तो इस ऐसे भी आ सकता था, इसको statement को हम ऐसे भी break down कर सकते हैं. Riya is coming to visit us. Next statement में full stop. Sapna is also coming to visit us. तो हम अगर इसको join करके लिखे तो we can write it as Riya and Sapna are coming to visit us. So that's how they help us in coordinating the two sentences. Next is, the train has arrived, but there is no sign of Umesh. अब देखो यहाँ पे जब लिखा है हमने train has arrived, full stop. अगर but नहीं होगा तो let's see कि but है नहीं हमारे पास. Let's take it वैसे लेते हैं. First statement is train has arrived, full stop. There is no sign of Umesh. दो statements में अभी coordinate कैसे कर रहा है इसको? Train has arrived, but आ गई है, पर जो उमेश का अभी तक भी कोई sign नहीं है. तो वैसे ही क्या करते हैं? Coordinating conjunctions help us in coordinating. They act as what? They act as coordinators. दो अलग statements को they coordinate and they form a single sentence. Next, correlative conjunctions. अब correlative से हमें relation के बारे में पता चल रहा है. क्यों बोलते हैं हम उनको correlative? क्योंकि वो हमेशा pairs में जाते हैं. Because they go in pairs. For example, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है मैंने both and, not only, but also, either or neither, nor, no, not, never, or. All these are what? They are pairs. जैसे कि these shoes are not only, this not only expensive, put a comma over here. These shoes are not only expensive but also of poor quality. अब not only के साथ हमने किसको pair बनाया? But also. Either के साथ अब देखना है यहाँ पे, neither the government nor the army, neither
द गवर्नमेंट नॉर द आर्मी। ईदर के साथ में हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। बोथ एंड, बोथ के साथ में हम क्या लगाएंगे, एंड। ईदर के साथ में हम उसके साथ में एक और कोरिलेशन में क्या लगाएंगे, और। नीदर के साथ में नॉर, नो, नॉट, नेवर के साथ में क्या लगाएंगे, और। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि दीज शूज आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो ऑफ पुअर क्वालिटी। अब इन्होंने क्या किया, दे वी ऑलवेज यूज देम टुगेदर। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब ही क्या है कि वो हमेशा कैसे हम उनको यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज देम इन पेयर। हमेशा हम उनको पेयर में यूज करेंगे। कोरिलेटिव जो एक दूसरे से रिलेटिव हो, नीदर नॉर से, ईदर और से, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पे था, नीदर द गवर्नमेंट नॉर द आर्मी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। neither the government nor the army knows what's going on. Okay, let's move forward. Yeah. Subordinating conjunctions. So what are subordinating conjunctions? हमने अभी दो पढ़े, आई होप दीज टू आर क्लियर, कोरिलेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हम आगे मूव ऑन करेंगे अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस पे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस and signal the relationship between the adverb clause or another clause. अभी adverb clause और दूसरा clause जो है, ये उनके बीच में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे कि हाँ अगर ये adverb clause है तो ये इस चीज से किस तरह से रिलेटेड है। लेट्स सी कैसे। an adverb clause answers the question। कोई भी adverb clause होता है वो आंसर करता है कि अगर ये कोई चीज हो रही है, how it happened, ये कैसे हुआ, तो कैसे आंसर करेगा, it happened like in this way, इस तरह से वो चीज हुई थी। when it happened yesterday। why it happened, अगर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसके जो आंसर्स होंगे वो हमारे किस में आएंगे, एडवर्ब क्लॉज में आएंगे। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, वो वर्ड्स दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। वो वर्ड्स जो सिर्फ अपनी सिर्फ एक वर्ड की तरह से वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो सिट देयर, गो सिट देयर, इतना छोटा सा स्टेटमेंट है। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये इन एडवर्ब क्लॉजेस और ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, जिसमें इट्स नॉट श्योर, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हो, वो कोई भी अदर क्लॉज भी हो सकता है, कोई और स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब देखो, in the following sentence the subordinating conjunction when signals a time relationship letting us know that one event caused the another। अब क्या करेंगे, जैसे कि एक हमारा ये स्टेटमेंट लेते हैं, one more thing that subordinating conjunctions let us know is कि वो क्या बताते हैं कि जो एक इवेंट हुआ है ना, वो किस दूसरे इवेंट की वजह से हुआ। तो देखो, जैसे कि I jumped when the fire alarm went off। when I jumped, जब फायर अलार्म बंद हो गया, एट दैट टाइम आई जंप। तो यहाँ पे देखो, जो फायर अलार्म गोइंग ऑफ वाला इवेंट है ना, उसने क्या इवेंट, उसने दूसरा इवेंट कौन सा स्ट्राइक ऑन किया, दैट इज जंपिंग। उसकी फायर अलार्म वेंट ऑफ होने की वजह से दूसरा इवेंट जो स्ट्राइक था वो हुआ जंपिंग। आई जंप व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। तो मैंने कब जंप किया, जब फायर अलार्म जो था वो बंद हो गया। सो बाय दिस इट इज क्लियर टू अस कि जो एक इवेंट है फायर अलार्म बंद होने वाला, इसने दूसरे इवेंट को इंस्टिगेट किया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से थे, जो एडवर्ब क्लॉज और दूसरा क्लॉज जो भी स्टेटमेंट में मेंशन है उनके बीच का रिलेशनशिप बताए कि कैसे एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को, मतलब कैसे एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज हमारा क्या आंसर करते हैं कि कोई चीज है वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, वो एक सिर्फ एक छोटा वर्ड ही कंप्लीट स्टेटमेंट का काम करता है। अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, हमें बताते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, वन दैट वन इवेंट कॉज द अनदर, हाउ वन इवेंट कॉज द अदर इवेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फायर अलार्म गोइंग ऑफ की वजह से उसने क्या किया, जंप किया। तो फायर अलार्म गोइंग ऑफ वाज वन इवेंट एंड जंपिंग वाज अनदर इवेंट। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर क्या, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इट इज आफ्टर, although, as if, because, before,
in, if, it is order that, once, since, so that, then, though, unless, until. All these are the examples of subordinating conjunctions. अभी एक example में देख लेते हैं, it makes more clear. Once sales improve, एक बार once था यहाँ पे हमारा, once यूज किया, एक बार जब sales improve हो जाएगी, the company will be able to pay its bill. तो किस चीज का वेट कर रही है कंपनी, कौन सी चीज का वेट कर रही है कि एक बार ये हो जाएगा, ये इंसिडेंट होने के बाद कंपनी क्या करेगी, वो अपने बिल को पे करेगी. ये दूसरा इंसिडेंट किससे लिंक्ड है, इससे. अगर यही नहीं होगा तो ये सेकंड इंसिडेंट टेक प्लेस नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, माय ग्रैंडमदर बिगैन ट्रैवलिंग आफ्टर शी सोल्ड हर हाउस. माय ग्रैंडमदर बिगैन व्हाट, बिगैन ट्रैवलिंग. उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया कब, आफ्टर, when she sold her house. जब उन्होंने अपना घर बेच दिया उसके बाद उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की. अगर वो ये घर सेल नहीं करती, दिस इंसिडेंट नहीं हुआ होता ना, तो ये वाला इंसिडेंट भी टेक प्लेस नहीं होता. नेक्स्ट इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स. नाउ कंजंक्टिव एडवर्ब्स में क्या आता है, दे कनेक्ट टू सेंटेंसेस. किनको कनेक्ट करते हैं, वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड दे एक्सप्लेन देन हाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू सेकंड. पहले में क्या था कि वो एडवर्ब क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्ट करेगा, एंड देन दे विल टेल कि वो जो स्टेटमेंट है हमारी, उसमें वो सेकंड क्लॉज है, वो फर्स्ट क्लॉज से कैसे लिंक करता है. ये क्या करेंगे, ये दो अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे रिलेटेड है हमारे सेकंड सेंटेंस से. दे कैन बी कंसिडर्ड both adverbs and conjunctions. इनको हम adverbs और conjunctions दोनों की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, because they modify the second clause and connect the second clause to first. ये क्या करते हैं, ये second clause जो भी हमारा होता है उसको क्या करते हैं, they modify the second clause, and then what they do after modifying the second clause, they connect the second clause to the very first clause of first. इसको हम किसमें कंसिडर करते हैं, they are considered as both adverbs and कंजंक्शंस. कैसे कंसिडर करते हैं, दोनों एडवर्ब्स और कंजंक्शंस की फॉर्म में. नेक्स्ट, कंजंक्टिव एडवर्ब्स. अब कंजंक्टिंग एडवर्ब्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्सो, एनीवे, बिसाइड्स, सर्टेनली, फाइनली, फर्दरमोर, हाउएवर, इंसिडेंटली, इंसिडेंटली दैट हैपेंड. अगर ऐसे हम स्टेटमेंट बोले तो इंसिडेंटली हो गया हो. नेक्स्ट, indeed, instead, likewise, meanwhile, moreover, namely, nevertheless, next, now, otherwise, similarly, still, then, therefore, thus, undoubtedly. All these are what? All these are conjunctive adverbs. अब इनका यूजेज देखते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्शंस का यूजेज. अभी इससे पहले हमने ये करने से पहले एक बार पुराना देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा. हमने कंजंक्शंस पढ़े, हमने पढ़ा कि जो कंजंक्शंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. We read what are conjunctions. These are the words that join phrase or clauses. जो words phrase या clauses को join करते हैं, they are conjunctions. Next, kinds of conjunctions. There are 4 kinds of conjunctions. पहले हमारे थे coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या थे, जो कि coordinator की तरह से act करते हैं. And the next thing is, वो क्या करते हैं, they are used to join the grammatical units of same class, rank या pattern. सेम क्लास, रैंक या पैटर्न की जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं उनको ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है एंड, बट, और, नॉर, नीदर, फॉर, येट, स्टिल एंड सो. इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया रिया और सपना का, विच आर हु आर कमिंग टू विजिट द पर्सन. तो यहाँ पे लिखा रिया एंड सपना. दो ट्रेन हैज अराइव्ड बट देयर इज नो साइन ऑफ उमेश. तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पढ़ा. कोरिलेटिव में हमने पढ़ा कि कैसे दो कंजंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे हम उनको पेयर में यूज करेंगे. अगर एक स्टेटमेंट है, अगर हमें उसकी पेयर क्वालिटी को मतलब एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे.
जैसे कि दीज शूज आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे आर ऑल्सो ऑफ पुअर क्वालिटी। बात शूज की हो रही है, पर यहाँ पे हमने कोरिलेटिव यूज करके हमने उसके दो फीचर्स को क्या किया, डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज नीदर द गवर्नमेंट नॉर द आर्मी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। ना तो गवर्नमेंट को पता है, ना ही आर्मी को पता है। अभी हमने दोनों गवर्नमेंट और आर्मी को लिंक कर दिया और नीदर या नॉर लगा दिया। क्या करते हैं, दे अगेन एक्ट एज पेयर्स की फॉर्म में ये एक्ट करेंगे, दे एक्ट इन पेयर्स। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, बोथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ईदर के साथ में वी यूज और, नीदर के साथ में वी यूज नॉर, नो नॉट नेवर के साथ में वी यूज और। ओके, इसके बाद हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में बात की थी, जो इंट्रोड्यूस क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज और अनदर क्लॉज के बीच का रिलेशनशिप। किसको, एडवर्ब क्लॉज और बाकी जो दूसरा क्लॉज उसके साथ उसके बीच का रिलेशनशिप। एडवर्ब क्लॉज हमारा क्वेश्चन का आंसर करेगा, कोई भी इंसिडेंट हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, जो कि अपने आप में एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। दोज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो एडवर्ब क्लॉज है हमारा, it will function because of this independent clause only. It can be with any other clause, it can be an independent clause. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या सिग्नल करते हैं, टाइम रिलेशनशिप। वो बताते हैं कि कैसे जो हमारा फर्स्ट क्लॉज इवेंट है वो सेकंड क्लॉज इवेंट से कैसे लिंक्ड है, फिर जो हमारा सेकंड क्लॉज इवेंट है फर्स्ट क्लॉज इवेंट से कैसे लिंक्ड है। इस स्टेटमेंट में अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं, लेट देम बी ए, one be A and the other one be B, so we have to see कि how this B is happening because of A और how this A is happening because of what, because of B। कैसे A की वजह से B हो रहा है, B की वजह से A हो रहा है, we have to choose this। जैसे कि I jumped when the fire alarm went off। I jumped when, जबकि फायर अलार्म बंद हो गया था, at that moment I jumped। Now subordinating conjunctions are, कौन कौन से हैं, after, although, as if, because, all these are the examples, please note it down। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंसेस में लेते हैं इनको, वंस सेल्स इम्प्रूव्ड द कंपनी विल बी एबल टू पे द बिल। कैसे, एक बार इम्प्रूव होगा उसके बाद, तो दिस स्टेटमेंट इज लीडिंग टू व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज लीडिंग टू दिस, दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक बार सेल्स इम्प्रूव होगा तभी हम बिल पे कर पाएंगे। तो अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा नहीं होगा, सेल्स इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा, तो हम बिल कैसे पे करेंगे, दिस स्टेटमेंट वोंट हैपन। अगर ये नहीं होगा तो my grandmother began traveling after she sold her house। when she began traveling, after selling her house। जब वो अपना घर बेचा उसके बाद ही she can start traveling। अगर वो अपना घर सेल नहीं करती तो ट्रैवलिंग भी वो नहीं करती। लास्ट इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या है हमारे, दे कनेक्ट, क्या कनेक्ट करते हैं वो, दो सेंटेंसेस को और कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेंटेंसेस की, पीछे किसकी बात हो रही थी, क्लॉजेस की। दे कैन बी कंसिडर बोथ एडवर्ब्स और कंजंक्शंस, हम उन्हें दोनों कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे मॉडिफाई द सेकंड क्लॉज एंड कनेक्ट द सेकंड क्लॉज टू द फर्स्ट। क्या करते हैं वो, मॉडिफाई करेंगे हमारा जो भी सेकंड क्लॉज है और उसको फर्स्ट क्लॉज से कनेक्ट कर देंगे। हम इनको दोनों फॉर्म्स में कंसिडर कर सकते हैं। इसका नाम ही है कंजंक्टिव एडवर्ब के, कि दे आर कंजंक्शंस एंड एडवर्ब्स, बोथ ऑफ देम आर कंजंक्शंस एंड एडवर्ब्स। Next, these are the examples of conjunctive adverbs, that is also, anyway, besides, certainly, finally, furthermore, next, now, otherwise, all these are what, these are examples। अब ये कैसे क्या क्या एक्ट करेंगे, ये कंजंक्शन की तरह एक्ट कर सकते हैं और एडवर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सी कि कंजंक्शंस की यूजेज कैसे, यूजेज मतलब कि हम उन्हें कहाँ कहाँ पे किसको कैसे यूज करेंगे। लेट्स सी दिस। अभी मैंने बताया ये जो बोथ है, बोथ एंड एंड, व्हाट आर दीज आर व्हाट, बोथ एंड एंड हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको कोरिलेशन में ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था इसको कोरिलेटिव कंजंक्टिव्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्टिव्स में बोथ के साथ में क्या था हमारा, एंड।
So let's see ये both और and को हम कैसे use करेंगे. So both and is an example of what? Is an example of correlative conjunctions. Okay. Sorry. Both takes and not as well as. कैसे मतलब? First statement is both क्या है, वो and लगाते हैं both के साथ, as well as नहीं लगाएंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो, I want to buy both vegetable and milk. I want to buy both vegetable and milk. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि I want to buy both vegetable as well as milk. हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको. We will write it down as I want to buy both and milk. जबकि this as well as and अगर ये दोनों को हम स्टेटमेंट में फिट करके देखें, please pardon this because I hope this is clear. It is and, but I'm not so well versed with this platform. So what is this? Both और and को हम कैसे use करेंगे? I want to buy both vegetable and milk. So अगर यहाँ पे as well as आएगा ना, I want to buy both vegetable as well as milk, but हम इसको use नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? Because even though हम इसको use करेंगे ना, वो correlative conjunctions के according wrong है. तो whenever such questions come, rather than using it, try to remember कि हाँ अगर कहीं पे both लिखा आएगा ना और options में as well as और and होगा, तो what you have to choose? You have to choose and, if that's clear. Next, this pen is both. ये पेन दोनों है क्या? Good भी है और cheap भी है. It is good and cheap. It is good as well as cheap. This kind of questions, they get very confusing at times, okay? Because we will find both are very appropriate to the sentences, and what we have to keep in mind that it is not a pair that works. We have to use both के साथ में and he. Okay, I hope that is correct. We don't say she will buy both tea as well as coffee. देखो यहाँ पे लिखा है, हम नहीं बोलते क्यों? Because this is incorrect. He is both as well as diligent. He is both intelligent as well as diligent. He is both intelligent and diligent. Full stop. इसके बाद में कोई question ही नहीं है. Both and is restricted to two only. अब यहाँ पे two only का मतलब क्या है कि जो both और and है वो कहाँ से किससे restricted है? वो सिर्फ दो चीजों के लिए use हो सकते हैं. दो से ज्यादा चीजें जहां पे भी आएंगी हम उनको उसके लिए use नहीं करेंगे. For example, she will buy both milk and sugar. She will buy both milk and sugar. This is correct. पर यहाँ पे सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है. क्या? एक तो बात हो रही है मिल्क की, एक बात हो रही है शुगर. तो हमारी किससे? सिर्फ दो चीजों पे रिस्ट्रिक्ट होगा. ये नहीं होगा she will buy both milk, sugar and tea. ये नहीं होगा. This is incorrect. What is correct is कि वो क्या खरीदेगी? She will buy both milk and sugar. But what is incorrect? That she will buy both milk, sugar and tea. तीन parts हैं. These are incorrect. दो हैं. Then it is correct. So both के साथ second condition क्या है? It is restricted to two only. You have to keep in mind two things कि both हमेशा both के साथ पे क्या लगेगा? And. और second thing is as well as नहीं लगेगा. First thing. Second is कि वो सिर्फ दो चीजों में restricted रहेगा. It will be restricted to only two things. Next, and का usage हम कहाँ पे करते हैं? Let's see. अब पहले यहाँ पे I have highlighted these are the things where we use it. Okay. First is plus and addition. जब भी हमें किसी भी चीज को add करना हो, जैसे कि 10 and 10 is 20. Then 20 and 20 is 40. तो जहां पे भी हमें क्या करना होता है? प्लस या एडिशन करना होता है. प्लस या एडिशन रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं? There we use and. Next is also oblique in addition to she. In addition, also and in addition. For example, जैसे कि यहाँ पे लिखा है she is young and beautiful. अब हमने she is young, हमें beautiful add करना था, तो हमने क्या लिखा? and. she is add कर दिया हमने. young तो पहले से था हमारे पास. she is young. now we have to add beautiful to that sentence. तो हमने क्या किया? हमने इसमें क्या प्लस कर दिया? we have added and to it, and उसके बाद में हमने उसको लिख दिया है she is young and beautiful. I hope this is clear. Okay, she is young and beautiful. Next is sequence. Sequence wise कैसे? He took out his gun and fired. अभी sequence की बात कैसे हो रही है? He took
आउट इज गन, पहले उसने गन निकाली, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली सीक्वेंस में ये आया. एंड फायर, दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट. तो सीक्वेंस के लिए भी हम यूज करते हैं टू टेल कि पहले क्या हुआ. ये ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, एंड देन फोर्थ क्या है. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑब्लिक कॉन्सिक्वेंस. रिजल्ट ऑब्लिक कॉन्सिक्वेंस के लिए भी हम उसे यूज करते हैं. कैसे? स्टडी दिस बुक एंड यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. क्या पहले रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये बुक पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा कि हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, फर्स्टली वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू स्टडी एंड देन व्हाट विल हैपन. नेक्स्ट इससे जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट इन व्हाट, इन इंग्लिश. ओके, study and you will improve your English. Next is give me blood and I'll give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना खून देना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी. ओके, नेक्स्ट इज पर्पस. He came here and saw his mother. जहां पे कोई भी स्टेटमेंट किसी इंसान का पर्पस बता रहा हो कि वो, ये अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई चीज हुई है तो वो क्यों हुई है. जैसे कि वो यहाँ पे आया, he came here, ठीक है, क्या करने आया, क्या पर्पस था यहाँ आने का, एंड saw his mother, उसकी मदर को देखने के लिए वो यहाँ पे आया. He came here and saw his mother. So the purpose of coming here was seeing his mother. Next, कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस. अगर कोई भी प्रोसेस है जो लगातार चलता ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस जो बहुत लंबे टाइम तक चलता ही जा रहा है, विच इज नॉट गोइंग टू एंड, तो उसके लिए भी हम एंड यूज करेंगे. कैसे? शी कैन डांस फॉर आवर्स एंड आवर्स. वो घंटों घंटों के लिए डांस कर सकती है. कितने घंटे के लिए, कॉन्टिन्यूसली कर ही सकती है. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चल रहा है उसके अंदर. नेक्स्ट इज द बेबी क्राइड एंड क्राइड. बेबी रोया और रोता रहा. ठीक है, वो बस रोता रहा. ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस. नेक्स्ट, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज. फर्स्ट इज इस चीज के लिए, सॉरी फॉरगॉट टू हाईलाइट दिस, अगर किसी भी चीज में लगातार या तो वो इंक्रीज हो रहा है या फिर लगातार वो व्हाट इट इज डिक्रीजिंग, तो दैट विल आल्सो वी विल कंसीडर इट, वहां पे भी हम एंड यूज करेंगे. जैसे कि इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर. क्या हो रहा है, कोल्डर ही कोल्डर होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है. ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स. वो और ज्यादा, अगर वो बीमार है तो और ज्यादा बीमार होता ही जा रहा है, या फिर वो धीरे धीरे और खराब होता ही जा रहा है. तो यहाँ पे किसी भी चीज की ग्रेजुअल इंक्रीज और या फिर उसकी ग्रेजुअल डिक्रीज, की लगातार वो गिर ही रहा है, लगातार वो बढ़ ही रहा है, वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज एंड ओवर देयर. नेक्स्ट, कंट्रास्ट करने के लिए. कंट्रास्ट कैसे करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे देखो, देयर आर गुड टीचर्स एंड बैड टीचर्स एज वेल. वहां अच्छे टीचर्स भी होते हैं और बुरे टीचर्स भी होते हैं. तो हमने किन दो चीजों को कंपेयर किया, गुड एंड बैड व्हाट टीचर्स. इन दिस कंस्ट्रक्शन, नाउन joined by and are repeated only once to indicate the contrast between different kind of same things or person. मतलब अलग है तो टीचर्स ही, बट डिफरेंट कैसे है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ सेम पर्सन और थिंग के बीच में कंट्रास्ट के लिए हम उसको यूज करते हैं. बट हम कहाँ यूज करेंगे, बट हम यूज करेंगे कंट्रास्ट ऑब्लिक कंसेशन के लिए. जैसे कि शी इज वेरी रिच बट शी इज अनहैप्पी. कंट्रास्ट किससे, वो रिच तो है बट क्या है, वो दुखी है, बस पैसे बहुत है बट स्टिल शी इज नॉट हैप्पी. नेक्स्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. वो पुअर है बट स्टिल ही इज ऑनेस्ट. नेक्स्ट इज बट. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट बट इंट्रोड्यूसेस अ वर्ड, फ्रेज ऑब्लिक क्लॉज कंट्रास्टिंग इट विद व्हाट प्रीसीडेड. कि पहले क्या हमने बोला है उसके साथ में हम उसको कंट्रास्ट करके बट से जो भी हम वर्ड लिखेंगे दैट विल बी रिलेटिंग टू दैट. इसको कंट्रास्ट करेगा कि पहले जो हमने वर्ड लिखा, जो प्रीसीड किया उसे, उसके बाद में जो उसको सक्सीड करेगा, उन दोनों वर्ड्स के बीच में एक कंट्रास्ट होना चाहिए. जैसे कि रिच एंड अनहैप्पी, पुअर
एंड ऑनेस्ट। अब देखो और कहाँ पे यूज करेंगे हम बट को, yet however in spite of, कैसे, he worked hard but he failed in the exam, कैसे, he worked hard, उसने work hard तो बहुत किया था but still he failed in the examination, that is he failed in the examination in spite of work hard। अब हम इसको दो फॉर्म से लिख सकते हैं, when we have, अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आता है and we have to transform it to the but statement, हमें इसको but के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। he failed in examination in spite of hard work, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, he worked hard but he failed in the examination, उसने क्या किया, उसने हार्ड वर्क किया था बट स्टिल ही फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट ऑब्लिक सरप्राइज। अभी डिसएग्रीमेंट और सरप्राइज की फॉर्म में हम उसको कैसे यूज करेंगे, यू लाइक हर वेरी मच, कोई इंसान बोलेगा you, somebody is asking you any kind of question या फिर he is telling you any kind of thing, is that you like her very much, you like, तुमसे बहुत like करते हो, but I say and disagreement, no I don't like that girl, वैसे हम बोलते कि no I don't, disagreement के लिए भी यूज करते हैं but I don't। next is you don't like fish। अब मैं तुमको किसी भी अपने फ्रेंड को बोलूंगी यू डोंट लाइक फिश बट आई डू, तुमको पसंद नहीं है तो क्या, मुझे तो है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिसएग्रीमेंट की फॉर्म में भी विल यूज बट। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू गेट मैरिड बट दैट्स अनथिंकेबल, इसने सोचा नहीं था बट स्टिल दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो डिसएग्रीमेंट या फिर सरप्राइज स्टेटमेंट्स के लिए भी हम किसको यूज करेंगे, बट। जैसे कि यू लाइक हर वेरी मच बट आई डोंट, तुमको पसंद होगी बट मुझे नहीं है, तो डिसएग्रीमेंट हो गया वहां पे सामने वाले के साथ में। अब यहाँ पे जब ये मैरिज वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, सरप्राइज, आई हैवंट इवन थिंक ऑफ कि वो लोग करने वाले हैं शादी बट स्टिल दे आर डूइंग इट। तो बट को कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कंट्रास्ट के लिए, दो चीजों को दिखाने के लिए। उसके बाद में हम उसको येट हाउएवर इन स्पाइट ऑफ की जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हम उसको डिसएग्रीमेंट या फिर सरप्राइज के लिए यूज करेंगे। लास्ट इज we have or। next is we have or is used in these senses, कैसे कि हम उसको alternative के लिए यूज करते हैं, this that is she'll buy a car or scooter, I'll buy mangoes or apples, या तो मैं मैंगो खरीदूंगी या तो फिर मैं एप्पल खरीदूंगी, अगर वो नहीं तो हम किस लिए यूज करते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव, या तो वो गाड़ी खरीदेगी या तो फिर वो एक स्कूटर खरीदेगी, ऑल्टरनेटिव हो गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पे दिया है अगर नेगेटिव कंडीशन वाला स्टेटमेंट है वेयर इट इज मेंशन्ड इफ नॉट एंड अदरवाइज, देयर आल्सो यू कैन यूज और। कैसे, स्टार्ट अर्ली, अर्ली स्टार्ट करो और यू विल मिस द बस, यू हैव टू स्टार्ट व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली और यू विल मिस द बस। नेक्स्ट, अगर इसी को हम इफ क्या बोल अदरवाइज की या फिर इफ नॉट किस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, if you do not start early you will miss the bus, ठीक है। अब ऐसे भी लिखेंगे start early you or you will miss the bus, या तो एक स्टेटमेंट ये भी हो गया start early otherwise you will miss the bus, जल्दी स्टार्ट कर लो वरना तुम बस को क्या करोगे, मिस कर दोगे। या फिर हम इसको लिखेंगे अगर इफ नॉट या अदरवाइज की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, हमें बट और में उसको कन्वर्ट करना होगा तो इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द बस, अगर तुम अर्ली स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम बस जो है उसको मिस कर दोगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, आई होप और इज क्लियर। पहले हम इसको अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम किसी भी नेगेटिव कंडीशन की जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट जहां पे हम मोस्टली नॉट वर्ड यूज करते हैं, डू नॉट, आई कैन नॉट, यू विल नॉट, शैल नॉट, ऑल दीज आर जहां पे हम नॉट वर्ड यूज करते हैं, देयर समहाउ दे गेट टर्न्ड इनटू अ नेगेटिव स्टेटमेंट्स। either or, neither nor, next most important thing is either or and neither nor। अब either or और neither nor में हम कैसे यूज करेंगे, my brother will buy either a car or a house, similarly वही सेम चीज, या तो कार खरीदेगा और a house, या तो घर खरीदेगा। next she will eat, या तो वो क्या खाएगी, राइस खाएगी और या फिर ब्रेड खाएगी। अभी देखो इसमें और पुराने वाले जो हमने इससे पहले और में पढ़ा था उसके ऑल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस है, जो बेटर ऑल्टरनेटिव होता है ना, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है हमारा, जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, फर्स्ट है, कल हमने पढ़ा था कार्डिनल है कि ऑर्डिनल, लेट मी नो,
इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो क्या है, बेटर ऑल्टरनेटिव इज पुट फर्स्ट। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हम हमेशा उसको किस में रखेंगे, हमेशा उसको पहले रखेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, जो भी बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा। जैसे कि कार या घर में से बेटर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, कार। राइस और ब्रेड में से पहले हमने किसको रखा, राइस को रखा, तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारी बेटर, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, राइस है। इन सच सेंटेंसेस द बेटर ऑल्टरनेटिव इट पुट फर्स्ट। ऐसे सेंटेंसेस में जो बेटर ऑल्टरनेटिव है हम उसको किस में रखेंगे, हम उसको पहले रखेंगे। नेक्स्ट इज नीदर नॉर। अब नीदर नॉर को हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेट्स चॉइस ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स। क्या इंडिकेट करता है, चॉइस ऑफ दो ऑल्टरनेटिव्स की। when it is used as a pronoun, adjective and adverb। कब हम यूज करेंगे, indicates a choice of two alternative, या फिर जब उसको किस लिए यूज कर रहे हो, एज अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या फिर हम उसको एडवर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हो, तब हम किसको यूज करेंगे, नीदर और नॉर को। जब हम किसी भी ऑल्टरनेटिव को प्रोनाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे कि शी लाइक्स नीदर फिश नॉर मिल्क। ना तो उसको फिश पसंद है, ना ही उसको मिल्क पसंद है। नेक्स्ट, ही कैन नीदर रीड नॉर राइट। ना तो वो पढ़ सकता है, ना ही वो इंग्लिश लिख सकता है। तो ऑल दीज आर व्हाट, all these are, we can say these are the alternatives। उसके बीच में हम क्या यूज करेंगे, neither or nor, either or। always remember neither और nor को हम अलग अलग तरह से भी यूज करते हैं। it is not mandatory कि हम उनको और neither और nor को एक ही उससे यूज करेंगे। we can use them separately as well, जैसे कि हमने और को किया। so either and or अगर हम इनको पेयर फॉर्म में दिया जाए, if you get two blanks to fill and you will get multiple options, then जब you have to see कि better alternative को first form में रखा गया है, और अगर it is like a denying statement, neither this nor that, if it's a denying statement then for sure we will use neither and nor। either and or where better alternative is put first। नेक्स्ट इज और में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं, या फिर हम नेगेटिव कंडीशंस, इफ नॉट या अदरवाइज की जगह पे हम और को यूज करेंगे। बट में हम कहा यूज करेंगे, बट में या तो हम कंट्रास्ट या कंसेशन के लिए उसको यूज करेंगे। येट, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ की जगह हम उसे यूज करेंगे। डिसएग्रीमेंट या सरप्राइज की जगह हम उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट कम्स, हमारे पास था एंड को यूज करेंगे एडिशन के लिए, प्लस के लिए, ऑल्सो इन एडिशन टू अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सीक्वेंस के लिए, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के लिए, पर्पस के लिए, या फिर किसी भी कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस या ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज को डिपिक्ट करने के लिए, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, देयर वी विल यूज एंड। ओके, just write down these points, these highlighted points, because only these are important and it will help you remember for a long time। if you want to jot down, just jot down these, don't write or you can write just one example of each, that is sufficient। okay, now how you will get questions in your examination, let's see to it। अब आपके पास जैसे कि हम either और नॉर लेंगे, the questions are, पहले तो आपके पास में questions जो मैं आपको हर लेक्चर के बाद बताया, क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चंस विल बी कि आपको you have to fill down the appropriate conjunctions। so we will do these question type series in the question series itself। ये जितने भी हम questions है previous year, हम इसको question series में ही attempt करने वाले हैं। जैसे कि I'll just give you a brief example of how we will do this। अब either और है या neither nor है, अब हम इसको कैसे करने वाले हैं। अब either और neither nor में हम क्या करेंगे, we will get a question of fill the appropriate conjunctions। ठीक है, you have to fill up the appropriate conjunctions। you will be given 4 options। पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है वो क्वेश्चन, और पैराग्राफ के बीच में भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ, एंड इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे देगा, और ए में यहाँ पे डैश डाल के यहीं पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 2 ऑप्शंस दिए होंगे। 4 ऑप्शंस आर वेरी वेल प्रेफर्ड, तो उस 4 ऑप्शन में आपको फिल करना पड़ेगा एक ऑप्शन जो यहाँ के लिए सूटेबल है। सिमिलरली यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि आप फिल करो। इट कैन बी अ प्रोनाउन, इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ प्रोनाउन, कैन बी अ नाउन, कैन बी एन एडजेक्टिव, और whatsoever we have done, कोई भी ग्रामेटिकल एरर आपको दे देगा, और फिर उसके बाद में आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनीथिंग।
आपको उसको past present tense के according भी fill करना हो सकता है. So all these are the kind of questions which you will be getting in your examination. So we will discuss the questions tomorrow. That is, tomorrow is Monday, and we will discuss our questions tomorrow. Till the topics we have covered till now, we have covered 5 to 6 topics. That is noun, articles, adjectives, pronouns, conjunctions. 5 topics we have done till now, and these 5 to 6 topics we will be covering tomorrow in our question series. So make sure you are well read of each and every topic. You must have revised, and because it will help. I'll be taking up all the previous year questions tomorrow. जितना भी है, whether it's of CAPF, CDS, or any other exam, SSC, banking, anything it is there, IBPS, I'll be taking it up. Okay, so I'll see you guys tomorrow. This is all I have for conjunctions today. I hope this lecture was quite easy. See you tomorrow, and hope you have enjoyed it. And if you guys have any doubt, please let me know. Okay, bye.